अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस ज़िंदगी के सफ़र में और हमारी ज़िंदगी के समंदर में बेशुमार जजीरे हैं। उनमें से कुछ हाल के हैं, कुछ मुस्तक़बिल के हैं, लेकिन सबसे हसीन जजीरे जिनमें आदमी रहना चाहता है वो है यादों के जजीरे। कोई खुशनुमा है, कोई खुशगवार है, कोई मुस्कुराता है, कोई कुछ कम मुस्कुराता है। अच्छा, इसी इन जज़ायर के सिलसिले में एक जजीरा है जिसका नाम है शाहिद। वो हम लोगों के लिए बहुत अजीज है। आज हम सब उसी जजीरे के पास ही हैं और इस जजीरे का क्या मंजर है, ये कैसा है और इससे दुनिया और ज़िंदगी कैसी नज़र आ रही है, इसके लिए मैं इस जजीरे के महरम राज को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हमें बताएं। डॉक्टर शाइस्ता रहू। Life is very unpredictable. Nobody really knows when it's going to be your last goodbye. I went to Pakistan on 16th of August. और एयरपोर्ट पे जो रुखसत मुझे छोड़ने शाहिद आए थे, that was his last goodbye. And it's very unfair and very heartbreaking because in a blink of a second, my whole life went upside down. But I'm not going to talk about those feelings. मैं आपको अपनी रेजिडेंसी के दौरान का एक किस्सा सुनाना चाहूँगी कि जब मैं सेकेंड ईयर में थी, हमारे एक प्रोफेसर की सडन डेथ हुई कार्डियक फेलियर की वजह से, and we went to his memorial services. I was new in America. हम सब बहुत शौक से उसको देखने गए और I was really stunned. There were guitars, there were snacks, and everybody was chatting and everybody was laughing and celebrating his life. It was felt bit strange for me because हम जिस कल्चर से आते हैं वहाँ पर मरने वाले को याद करने के दूसरे तरीके होते हैं. But after spending more than 2 decades here, I think I like that style better कि हम जो हमें मौजूद नहीं है हम उनकी लाइफ की अच्छी बातें याद रखें. तो मैं आपको शायद कि वो तमाम बातें शेयर करना पसंद करूँगी. But before I say anything, I'm really touched कि आप लोगों ने उनको याद रखा. I think it's our job after the person who has passed away. It's our job to keep their memory alive, and you guys have been a great support, and that's what kept me going. Shahid was one of a kind. He was highly intelligent. He was never a follower. He was a leader. He never believed in conforming. He set his own standards and he follows those standards. He was the only person in his whole family who went abroad and never went back to his home. He loved animals, he loved nature, and he was into science, maths, astronomy, and literature. He loved to follow politics. He was deeply disturbed by what was happening in Karachi and Gaza. He was very, very fond of eating. If you listen to him talking about food, it looks like he was living to eat, but he really didn't eat much. But he would describe things that it makes it very pleasant to eat with him. I didn't know how to cook when I came, but then I started learning cooking, and every time I cooked something, he would
every time he take a bite, he would say something very nice about how good that food is. And since then, he has passed away. I feel very strained. पिछले हफ्ते मैंने कुछ बनाया तो मैं अपने भांजे से पूछा, यूसुफ सही बना? हाला ठीक है ना? ठीक, क्या बात है? So I miss this conversation, छोटी-छोटी चीजें. When I came, he used to love comedy. He will just watch the comedy light shows, and then I taught him how to watch action movies and thrillers, and he started watching those movies with me. We both love nature, and fortunately our yard opens on the east side, and we used to love watching sunrise and full moon. I was never a person, in fact I was kind of afraid of dogs. He made me start loving cats and dogs. He brought one German Shepherd one day, and I was so angry that we are not going to keep a dog. But then that dog made me start loving her, and he used to call it just Desi Shepherd, because she would eat nehari and biryani and everything with us. I hate wasting food, and it never wasted, because whatever is left over, she will always eat it. So he has his own way of expressing himself, and I think he would hate saying goodbyes, so he would always say that I'm going to be the one who will leave this world first, and I would always say no, I'm going to go first, so then you will realize what I do for you all the time. But looks like he was closer to the God, and God listened to him. His brother passed away in July, and he wrote a small poem for him, inspired with the Bible quote. He said, even though one man walks through the valley of shadow of death, another life begins somewhere else. Even though a day ends in the gentle pink of the setting sun, another day begins with the shining cheeks of a baby cheeks. I don't want to say anything depressing about him, but I just wanted to say some दो शेर हैं गज़ल के जो मैं सुनाना पसंद करूँगी. रुखसत हुआ तो हाथ में लाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया. But before I end my speech, I would like to quote one of the joke. उनकी Facebook पे जो शाहिद ने अपना आखिरी joke post किया था, I just wanted to read it so that people would know that what kind of a person he was. So there was a newly married husband who put up a notice after coming back from the honeymoon. He said, "For sale, computer and encyclopedia, both in good condition. Reason for selling, no longer needed. Got married, wife knows everything. Comes with a backup server called mother-in-law." बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइस्ता. जो कुछ आपने कहा शायर के बारे में, हम सब लोग उससे मुत्तफ़िक़ हैं, और किसी दूसरे शायर से मस्तार लेके मैंने थोड़े से रद्द के साथ कुछ कहा है, वो उसके साथ अब चलेगा. हस्ती से उसने रंग बिखेरे थे हर तरफ, हस्ती से उसने रंग बिखेरे थे हर तरफ, यादों की दिल में धनक छोड़ता गया, यादों की दिल में धनक छोड़ता गया. शाहिद था इसका नाम, शाहिद था उसका नाम,
वो था गज़ल का फूल। ये हमारी गज़ल महफिल। शाहिद था उसका नाम, वो था गज़ल का फूल। महफिल से जब गया तो महक छोड़ ना गया। तो ये जो महफिल है और जजीरा जिसकी हमने बात की थी, ये इस वक्त है, ये ऐसे ही है कि जगमग है धरती का आंचल, झिलमिल है आकाश की बस्ती, आसमान पे सितारे झिलमिला रहे हैं, उसमें एक दरख्शंदा सितारा शाहिद है। उसके बारे में एक शख्सियत ने कुछ कहा है, वो शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। उर्दू अदब का जब भी जिक्र आएगा हसीना मोइन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। हसीना मोइन उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने उनके बारे में कुछ लिखा है। तो हसीना मोइन की कहानी दुनिया की ज़बान। हसीना मोइन को तो आप सब लोग जानते ही हैं, और उन्होंने हमेशा बड़े मज़ाहिया और अंदाज में बहुत मुश्किल चीज़ें बयान की अपने ड्रामों में, और बहुत हम लोग उनको हंसते हंसते ही बड़े हो गए उनके ड्रामे देखते हुए। हालांकि हर ड्रामे में कोई ना कोई चीज़ थी, कोई ना कोई सबक था। उनकी ज़्यादातर हीरोइन जो थी वो चंचल, शौक और शरारतों से भरी होती थी, मगर शायद जब वो शाहिद भाई के लिए लिख रही थी तो उनके तस्वुर और उनकी चीज़ में ये था ही नहीं कि शाहिद भाई अचानक चले जाएंगे। तो ये हसीना मोइन का थोड़ा सा दुखी खत है जो आप लोगों की ये मैं पढ़ती हूँ। और हालांकि मेरे लिए मुश्किल है शाहिद भाई को हमेशा उदासी से याद करना, क्योंकि मुझे हमेशा लगेगा कि वो कहीं से आके कहेंगे कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, और इसी तरह वो मुझसे कहेंगे कि भाई चलो चलो सही अच्छी तरह अच्छी बातें करो, अच्छी चीज़ें करो। मगर हसीना मोइन ने ये खत लिखा है तो मैं आप लोगों के लिए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शायद ये तुमने क्या किया, इतनी दूर चले गए, वो भी बताए बगैर खुदाफिज किए। अम्मा ने कई बार कहा था कहीं जाओ तो बता कर जाओ, वहां जाकर फोन करो, मुझे परेशानी रहती है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ना खबर की कि मुझे जाना है, ना खुदाफिज कहा किसी को, चुपके से इतनी दूर चले गए जहां ना तो हमारी आवाज जा सकती है, ना आंसू तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं, ना तुमने मुड़कर देखा होगा कि हम पर क्या गुजरी है। फासलों ने हमें दूर कर दिया था, लेकिन भाई प्यार को फासले नहीं रोक सकते। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे घर वाले तुमको कितना प्यार करते हैं? बदनसीबी ये है कि हम तो इजहार नहीं करते, ना हमने तुमको कभी बताया कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, ना तुमने कहा। अनकही रह गई हर बात कह जाने के बाद। शायद हम सब ने इतनी दुआएं मांगी हैं, हर दिन और हर रात जागकर। तुम्हारे सारे रास्ते जरूर आसान हो गए होंगे, लेकिन हम क्या करें? हमें तो हर रोज फेसबुक पर तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहता है, हर हफ्ते तुम्हारे फोन का इंतजार रहता है। तुम शायद हंस रहे होगे, जब तुम थे तब शायद हमने तुम्हारी कदर नहीं की, वो प्यार नहीं दिया जो तुम्हारा हक था। मगर भाई वो सब तो हमारे दिल में है,
تم نے کیسے محسوس نہیں کیا؟ یہ گھر تو ہمیشہ تمہارا منتظر رہتا ہے اور رہے گا۔ تم جہاں گئے ہو خدا کرے وہاں تمہیں وہ خوشی، وہ سکون، وہ پیار مل جائے جس کی تمہیں تلاش تھی، اور اگر مل جائے تو کبھی خواب میں آ کر ہمیں بتا دینا۔ مگر اب تو ہم نے خواب دیکھنا بھی بند کر دیے ہیں۔ پردیس تمہیں راس نہیں آیا، اس لیے تم دور کسی پردیس میں جا بسے۔ تمہارے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام اور بہت سی دعائیں۔ یہ سینا موئین نے لکھا تھا، اور ظاہری بات ہے ان کے جذبات کی عکاسی ہے، اور انہوں نے ایک ہی مہینے میں جیسے بڑے بھائی کی بھی جدائی سے گزری اور چھوٹے بھائی کی بھی۔ مگر جب میں شاہد بھائی کو یاد کرتی ہوں یہ تو ضرور کہتی ہوں کہ مقدور ہو تو خواب سے پوچھیں کہ ہے نہیں تم نے وہ گنجائے کرم آیا کیا کیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب شاہد بھائی کی پچھلی ایک دفعہ شاہد بھائی کو اگر آپ نے سنا ہو تو ویژنری تھے، ان کو بہت تھا کہ لوگ مل کے چلیں، ان کو بہت تھا کہ ہم دوسروں کو الزام نہیں دے سکتے اپنی کوتاہیوں کا اور غلطیوں کا۔ ان کو تھا کہ اگر ہمیں صحیح کرنا ہے تو یہ کہنے کی جگہ ہمیشہ کہ مشرق کا قصور ہے، ہم اپنی تاریخ میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کب کب غلطیاں کی تھیں اور کب کب ہم لوگ عروج پہ تھے مسلمان، اور وہی ان کا ویژن تھا۔ اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو ان کی تاریخ بھی ان کو ایسی ازبر یاد تھی کہ آپ ان سے جو بھی سن سکتے ہیں اور دوسرے منٹ ان سے پوری تاریخ بھی سن سکتے ہیں۔ اور جس سب سے اچھی بات ہے شاہد بھائی کی، جو کہ میں ہمیشہ اپنے میاں سے کمپیئر کرتی تھی، وہ کسی چیز کے پابند نہیں تھے۔ He lived life on his own terms۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا یہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم مجھ پہ اتنی پابندی لگاتی ہو بولنے پہ، اور شاہد تو بول گئے جو انہیں بولنا تھا، تو میں نے کہا شاہد سے بھی نہیں روک سکتی ہوں پر میں آپ کو روک سکتی ہوں۔ تو شاہد میں کہ آپ ان کو پہلے سے کہہ سکتے تھے بھئی یہ ہوگا، اور جب کبھی وہ لطیفے سنتے تھے بعض دفعہ وہ ایسے لطیفے کہتے تھے کہ وہ شاید یہاں کہنے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ بس کہہ جاتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے جو بندہ چلا جاتا ہے اس طریقے سے اور اچانک سے، اور ہم لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ہوتے تو یہ ہوتا اور وہ ہوتے تو وہ ہوتا، مگر جو اس طریقے سے جاتا ہے وہ بڑی سکون سے جاتا ہے۔ ان میں بہت تحمل اور سکون بھی اتنا ہی تھا کہ ان کا وقت تھا تو وہ چلے گئے ایسے ہی اٹھ کے، پر وہ ون آف دوز ویژنری ضرور تھے جن کے لیے ہم لوگ سبھی کہتے ہیں اور سبھی سوچتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت پیدا۔ شکریہ۔ شاید دنیا نے بہت اچھا پڑھا ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز اگر نوٹ کی ہو تو میں آپ کو اسی وقت سب کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے خود کہ یہ مجھے روک سکتی ہیں، روکتی ہیں، ان کا کنٹرول ہے۔ یار اس طرح سے مت دیکھو، میرے پاس دوسرے گواہ ہیں موجود۔ تو فیس بک پہ کامنٹس کی بات ہوئی، دنیا اپنا حسینہ موئین نے لکھا، تو کامنٹس کے اوپر جو ہے ان کے چاہنے والے یہاں پہ بہت سے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں ہمارے آفتاب جاوید صاحب جو اس پہ کام بھی کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں، وہ آج مصروف تھے تو خاص طور پر آئے ہیں بڑے بھاگے بھاگے کہیں سے، اور انہوں نے کہا کہ شاہد کو یار ہمیشہ میرے چکن پیٹس بہت پسند ہیں، تو وہ ہم سب لوگوں کے لیے چکن پیٹس لے کر آئے ہیں، تو وہ وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ آفتاب بھائی شکریہ۔ اب ہم جب آگے چلتے ہیں تو بات ہو رہی تھی شاہد کی کہ بھائی جو ہے جب وہ لطیفے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں روک سکتا، تو اردو ادب کی ایک بہت ہی مزاحیہ شخصیت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
वो बंदा जुमला ज़ाय नहीं करता है, भले से बंदा ज़ाय हो जाए। तो मैंने ये तो नहीं देखा शाहिद को कभी बंदा ज़ाय करते हुए, लेकिन जुमला ज़ाय करते हुए कभी नहीं देखा। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मुसर्रत ज़िंदगी का दूसरा नाम, मुसर्रत की तमन्ना मुस्तक़िल गम। शाहिद के एक बहुत अच्छे दोस्त जो उनके साथ रहे, उनकी मुख्तलिफ खूबियों को देखा और उनके मदाहों में से थे, और उन्होंने इस प्रोग्राम को रख करने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरा इशारा है मेरे अजीज़ दोस्त खालिद सईद की तरफ। खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। We are from him and we have to go back to him. डॉक्टर शाइस्ता हमारे सब की तरफ से, मेरी तरफ से, नसीम की तरफ से, हम सब की तरफ से ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला शाह भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आपको सब्र जमील और दूसरे सब रिश्तेदारों को भी। शाह भाई मेरे दोस्त थे, फेसबुक के ऊपर हम अक्सर गुफ्तगू करते थे, कम्युनिटी के दूसरे मौक़ों पर भी उनसे मेरी मुलाकात रहती थी। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मौत एक हकीकत है और हम सब ने उसका मज़ा चखना है एक वक्त, लेकिन ये कभी भी आसान नहीं होती है हमारे लिए इसको फेस करना। और जब ख़ास तौर पे अचानक ऐसा मौका आ जाए जैसा शाहिद भाई के इस वक्त पे हुआ, तो ये अभी भी नाकाबिल यकीन सी बात लगती है। ख़ास तौर पे जिस दिन मुझे पता चला, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया, और अगर वो दोस्त मुझे ना बताते तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता कि वाकई शाहिद भाई आज इस वक्त हमारे दुनिया में नहीं। ख़ास तौर पे 2 दिन पहले शाहिद भाई ने मुझे कुछ और दोस्तों के साथ अपने घर इनवाइट किया। डॉक्टर शाइस्ता यहाँ पे नहीं थी और कहते हैं कि वो खाने बहुत सारे पका के छोड़ गए हुए हैं, तो आ जाएं आप। मैंने कहा हम आपको तंग करेंगे, कहते नहीं आ जाएं आप। तो हम 4-5 लोग वहाँ पे थे। उनका बैकयार्ड उन्हें वाकई बहुत पसंद था। वो अक्सर बैकयार्ड की तस्वीरें मुख्तलिफ मौसमों में, मुख्तलिफ औकात में खींच के फेसबुक पे अब भी लगी हुई हैं। अगर आप देखें तो आप इंजॉय करेंगे वो। तो मैं गया हूँ तो उनके बैकयार्ड में वो खुद बारबेक्यू कर रहे थे। डॉक्टर शाइस्ता माशाल्लाह खाना आपके हाथ का खाया है, बहुत मज़े का होता है। तो मुझे नहीं पता उन्होंने सिखाया आपको या यहाँ आके सीखा आपने। बहरहाल मुझे ये नहीं पता था कि वो खुद भी कुकिंग करते हैं वैसे। और उस दिन वो हम मगरिब के टाइम पे गए हैं, मगरिब वहाँ उनके बैकयार्ड में हमने पड़ी। वो वहाँ पे बारबेक्यू रखा हुआ था और वो बारबेक्यू कर रहे थे। पड़ोसियों के साथ भी माशाल्लाह उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। 2 पड़ोसी उस दिन ताज़ा सब्जियां देके गए हुए थे उनको, वो भी ग्रिल कर रहे हैं। हम तारों के नीचे बैठे बड़ी देर तक गपशप भी लगाते रहे और खाना एंजॉय करते रहे। उसके बाद अंदर जाके हमने चाय वाय की, डेजर्ट काफ़ी सारे थे वो एंजॉय किए। शाहिद भाई बहुत खुशगवार, बहुत मज़े के मूड में थे। वहाँ से उठ के काफ़ी देर तक, आई थिंक ऑलमोस्ट टू मिडनाइट वी वर सिटिंग जस्ट गपशप। तो अपनी लाइब्रेरी में ले गए और जब मैं उनकी लाइब्रेरी में गया हूँ तो मुझे बहुत बड़ी किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ उनकी किताबें देख। और मुझे उस वक्त पता चला कि इंटेलेक्चुअली वो जिस किस्म की सोफिस्टिकेटेड बातें करते थे, काम करते थे, लिखते थे, उसकी वजह क्या है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की किताबें उनकी थी। वहाँ पे बैठे हम काफ़ी देर गपशप लगाते रहे। उसके बाद आखिर में 12:30-1 बजे के बाद हम निकले हैं वहाँ से और उनके ड्राइववे के ऊपर हमने 15-20 मिनट, आधा घंटा वहाँ पे लगाया होगा। खड़े गपशप लगा रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में। और 2 दिन के बाद गालबन मेरी शम्स नज़ीर का मुझे फ़ोन आया सुबह को कि शाहिद भाई हमारे दरमियान में नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि अगर मीर साहब का फ़ोन ना होता तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता। मैं अभी यकीन नहीं करता हूँ वो हमें नहीं है, क्योंकि
फेस बुक के पे अब भी उनकी साइट है और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे पास आती रहती हैं। तो ये जो शख्सियत उनकी इस किस्म की थी कि वो कम्युनिटी के कामों में भी बहुत हमेशा एक्टिव होते थे। हम अमेरिकन मुस्लिम वॉइस फाउंडेशन कम्युनिटी रिलेशनशिप के काम करती है, तो वो भी माशाल्लाह इसमें बहुत एक्टिव थे। बे एरिया में हमारा सालाना कन्वेंशन था और हमें एक पैनल के लिए एक मुसलमान बंदा चाहिए था जो हमारे पर्सपेक्टिव के साथ किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सके, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो अग्री हो गया है। उन्होंने जाके वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस भी किया और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट भी किया। अभी पिछले साल दिसंबर 24 को हमने 1000 डिनर ड्राइव की थी। वो लोव्स एंड फिशेस में तकरीबन 1000 लोगों को कम्युनिटी की तरफ से अमेरिकन मुस्लिम वॉइस की फाउंडेशन की ऑर्गेनाइज की हुई हमने डिनर दिया था वहाँ पे। तो हमारे 35-40 लोग कम से कम वॉलंटियर थे, तो उनमें शाहिद भाई थे। अब जब कुकिंग हमने वहाँ पे खुद की थी, और कुकिंग में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? प्याज छीलना। और शाहिद भाई ने सिंगल हैंडली, प्याज ने भी उनको कढ़ाई करने नहीं दिया, वो खुशी खुशी सारा प्याज तकरीबन उन्होंने काटा और उफ तक नहीं किया। इसी तरह और दूसरे कामों में भी हमेशा आगे आगे होते थे। अब उनकी अचानक जो डेथ हुई है उससे दुख होता है, और अक्सर हम सब दुख महसूस करते हैं, लेकिन दरअसल दुख, उसका एहसास, उसको उनके ना होने को झेलना, ये जो हमारे अजीज तरीन लोग होते हैं उनको वही महसूस कर सकते होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमारे हमेशा साथ होता है, दुख सुख में हमारे साथ होता है, दुआ करते हैं उनके लिए भी और अपने सब्र के लिए भी अल्लाह दे देता है। लेकिन मुझे उनकी इस अचानक मौत से खुद अपनी ज़िंदगी के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का कुछ मौका मिला, और मैं ये सोच रहा था कि ज़िंदगी कितनी भी बड़ी हो, मैंने बड़े बूढ़ों से सुना था यार 60 साल हो गए हैं, पता नहीं कितने चले गए। और आज मैं भी अक्सर ये कहता रहता हूँ पता नहीं किधर चले गए। और उससे जो मैंने ये सीखा है कि हमारे पास जो भी वक्त है इस वक्त, मैं उसको एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहूँगा। जो चीज़ें मुझे मैटर करती हैं, जो चीज़ें मैं इंजॉय करता हूँ, मैं वो करना चाहूँगा। जिन लोगों के साथ मिलकर मुझे खुशी होती है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रखना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि ना सिर्फ मैं अपने आप को खुश रखूँ, बल्कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनमें भी हम मुस्कुराहटें बांटें। तो ये जो प्रोग्राम एक हमने ये शुरू किया था 2 साल पहले, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमने कुछ अर्से से महसूस कर रहे थे। अब यहाँ पे जो हमारे दोस्त बहन भाई तशरीफ लाते हैं, मैं यकीन के कह सकता हूँ कि मैं बहुत सारे अपने अजीज रिश्तेदारों से ज़्यादा कुर्बत महसूस करता हूँ उनके साथ, मैं ज़्यादा उनकी कंपनी को लाइक करता हूँ। तो आज तकरीबन 1 साल हो गया है वो हमने 1000 डिनर ड्राइव की थी। अभी आपने देखा आफ्ताब जावेद भाई तशरीफ लाए थे, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, ये कहते यार मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन शाहिद भाई को एक डिश खास तौर पे बहुत पसंद थी और मैं वो बना के लाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आप ले आए, हम अपने तबाक करने वालों से कह देंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो वो इतने बिजी थे, आई थिंक इसमें वो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी नहीं कर सकते, लेकिन वो शाहिद भाई के प्यार में वो लेके आए। समीना साहबा वहाँ से कितनी सारी पाइज लेके आई हैं हमारे लिए, तो उनके आनर में डिजर्ट देने के लिए। अभी डॉक्टर तारिक अमेरिकन मुस्लिम वॉइस सैक्रामेंटो का चैप्टर जो है ना, यहाँ पे फलाई काम भी करता है, इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करते हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर 24 को दोबारा वो वही
ایک ڈنر لووز اینڈ فشز کے اوپر ہوگا جہاں پہ تقریباً 1000 لوگ پھر ان کو ہم فیڈ کریں گے. تو اس وقت سیکرمنٹو چیپٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کھانے کو، ابھی ڈاکٹر طارق نے مجھے آ کے اطلاع دی ہے کہ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دن جو ہم نے کھانا بنا کے خیرات کرنا ہے اس کا ثواب ہم انشاءاللہ ڈاکٹر اپنے شاہد بھائی کے لیے ان کی روح کا ثواب. تو ڈاکٹر شائستہ وہ ہمارے قریب تھے. ہم پھر آپ سے تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے بہن بھائی ہیں. جب بھی موقع ہو تو آپ ہمیں یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے اور ہم سب کو صبر کی مدد آپ کو. شکریہ. شکریہ خالد. خالد نے کہا کہ کتابوں کے رسیات ہیں وہ، کچھ لوگ کتابوں کا کیڑا بھی کہتے ہیں، اور ایک گنگو شخصیت کے حامل ہیں. ان شخصیات کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہمیں یاد آتا ہے جب رمجھم بارش ہوتی ہے، ہر سمت نمی چھا جاتی ہے اور سبزہ کلیوں پر موتی سے گراتی ہے. ایک شخص ہمیں یاد آتا ہے. ان کی مختلف لوگوں نے مختلف روپ دیکھے ہیں، ان کے مختلف شخصیات کا احاطہ کیا ہے، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں جو انہیں یاد کرتے ہیں مختلف اس سے، ان کے سائنسی انداز سے، ان کے بیان سے، ان کی تاریخ سے، ان کے جذبے سے. جیسے پریا نے کہا تھا کہ جب انہوں نے یہاں پہ کہا تھا تو سقوط بغداد کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہلاکو خان نے کیا کہا تھا کہ بھئی اگر یہ پیسے، یہ دولت اگر تم علم کے لیے استعمال کرتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. تو ایک شخص ہمارے درمیان، ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. جناب میر شمس نذیر. Last year Thanksgiving, November 30th, 2013. A little joke for the holidays. There were 3 lines of men in front of God. First and longest miles and miles comprised men who were under the dictatorship of their wives. Second one was where men were about equal to women. And there were just 5 in line. The third one was where men play dictator over their wives. And there was just 1 man in that line. God was really puzzled and asked the lone guy in the third line, what was so special about you? And he could tell that you could tell women what to do. He said, dear God, don't know about dictator or anything. My wife told me, stand over there, so here I am. So this was the joke shared by Shahid Bhai on his last Thanksgiving with us on his Facebook. میں شروع میں شاہد بھائی کو سلام میں ملا کرتا تھا. تو پہلی دفعہ جب ان سے میں نے والٹیئر اور آئنسٹائن اور سب لوگوں کی باتیں سنی تو I thought he is very intellectual and I should stay quiet in front of him. تو اس کے بعد اسی دعوت میں ہی سلام کی. تھوڑی دیر بعد شاہد بھائی کھڑے ہوئے اور کہتے میں تو جا رہا ہوں. میں نے کہا شاہد بھائی ابھی تو 9:30 تقریباً 9:45 ہوئے تھے. نہیں 10 بجے تھے. میں نے کہا 10 بجے ابھی تو ٹائم اتنی جلدی جا رہے ہیں. کہتے نہیں آئی ہیو ٹو واچ سیٹرڈے نائٹ لائف. اب میں سیٹرڈے نائٹ لائف نہیں مس کرتا. تو میں نے کہا ناؤ آئی کین بی اے فرینڈ آف ہم. دیر از سم تھنگ اباؤٹ ہم وچ آئی ڈڈ ناٹ نیو دیٹ. تو میں کچھ زیادہ تو پریپیئر نہیں کر کے لایا ہوں. مجھے شاہد بھائی کی یادیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. On February 11, there is a reflection of one side of his life. He writes the word compassion and he says, I'll give to all those who appear to need help. Some have told me
that you don't know how many of these are just fake. I remember an old saying that give irrespective of your suspicions about intent, since you don't know. When I have a lot, I give a lot. When I have less, I give little less. When I may have nothing, as in my student days, I still give. Once Shaista, looking at my behavior, said, maybe that is why God gives you whatever you want. However improbable, who would have thought that a middle-class boy from Pakistan would go to Harvard University and learn from Nobel laureates and compete with the best of their country. When I was a little boy, I would see dead animals on the street. People would ignore them. I would get out, take them in my arms, put them in the shade by the side of the road. I believe that if you love God's creations, He will always love you. But don't do it for a reward. Try giving water to a thirsty and dirty dog, and God may erase all your sins. This is said in all seriousness. Try, Shahid. तो उसके बाद जब शाहिद भाई से दोस्ती होना शुरू हुई तो पता चला कि मैंने कुछ एक दो पोस्ट की बॉस्टन के बारे में, तो शाहिद भाई ने तो वहाँ के वो जो है दुकानदारों के नाम तक बताने शुरू कर दिए कि इस दुकान पर ये मिला करता था, यहाँ पर ये मिलता था, ये पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार था और यहाँ से जाके स्टेक खाना चाहिए। और फिर उनसे बात हो रही थी कि शाइस्ता जो है फिलाडेल्फिया गई हुई है, तो मैं उनसे ये कहा है कि वापसी पे वहाँ से वो 3 चीज़ स्टेक, वो वहाँ का जो मशहूर बर्गर, वो सैंडविचेज हमको लेते हैं। तो फिर वो खाने शाने की बातें उनसे, और शायद भाई खाने के बारे में इतने सीरियस थे कि किसी के घर दावत में मैं गया हूँ, वहाँ पे बैठा हुआ, तो शायद भाई मुझे इंसिस्ट कर रहे कि आप और कुछ मत खाओ, सिर्फ ये खाओ। और वो किसी थर्ड आदमी के घर दावत हो रही थी, कहते छोड़े उसको, ये खाओ। तो स्पाइसी बिरयानी उनको सबसे ज़्यादा उनका फेवरेट फूड और कोफ्ते। One trait I have noticed, July 13, Sacramento. One trait I have noticed in myself is that I truly enjoy the company of very, very bright people, of any race, religion, color, profession, or ethnicity. Although I'm pretty darn dumb myself, but I do not get jealous of their power of intellect and their achievements. It is the best pleasure in my life, almost as good as any spiritual experience. After real good cuisine, which I also love as much to the charging of my wife, family and my best friends. तो उस पर मैंने उनको थोड़ा सा पोक करने के लिए लिखा कि I'm here to provide the company, because he was speaking about the intellectual stuff. So Shahid Bhai replied, you are already there, don't need to ask me. ये जो आखिरी उनका मैसेज है मैं लिख कर लाया था, डॉक्टर शाइस्ता ने भी पढ़ा है तो मैं भी पढ़ देता हूँ। ये जब उनको अपने भाई की फकीकी की खबर थी, उन दिनों में उन्होंने लिखा कि इवन दो, उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत वो ईस्ट से जो आपका राइजिंग सन है उसकी तस्वीर लगाई और कहा इवन दो वन मैन वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, इट्स अ Psalm 23:4, another life begins somewhere else. Even though a day ends in the gentle pink of the setting sun, another day begins with the shining beauty of a living street. Ali Sahab ने बताया about that night on Friday night जब हम शाहिद भाई के पास गए हुए थे मिलने. We did not knew that we were among the last few people who meet him. तो उस दिन उनके साथ मगरिब की नमाज पढ़ी और वो साथ खाना खिलाते हुए जैसे हमेशा जोक करते रहे, सारा बता रहे हैं और साथ साथ ज़बरदस्ती आपको खिलाई जा रहे हैं. आप भी कह रहे हैं कि नहीं शायद भाई बस थैंक यू, वो कह रहे नहीं अब ये सारा खाओ और ना और कौन खाएगा. तो मैंने बनाया खड़े होकर, तो उसमें उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, अगर खालिद साहब को बात याद हो तो शाहिद भाई से बातचीत चल रही थी उम्र अजल और उम्र कज़ा के बारे में.
तो मैं उस वक्त मुझे इमाम गज़ाली का नाम भी याद आ रहा था, तो लेकिन मैंने रेफरेंस उनको दिया। मैंने कहा शायद जो उम्र अजल होती है वो ये है कि आप तो मतलब अल्लाह ताला ने आपकी एक ज़िंदगी लिखी हुई है, यू लिव दैट लाइफ, और उम्र कज़ा जो है ना, अगर आपने जो पंगा लिया तो वो ख़त्म हो सकती है। तो आई डिड नॉट न्यू दैट शायद का पंगा सोचना। मैं आखिर में चंद इशार लिख के लाया था साबिर सिद्दीकी साहब के, तो शेयर करूँगा आपके साथ। मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ऐ दिले बेकरार चुप हो जा, जा चुकी है बहार चुप हो जा, अब ना आएंगे रूठने वाले, ईदा यश्क बार चुप हो जा, जा चुका है कारवान कारवानी लाला और गुल, जा चुका है कारवानी लाला और गुल, उड़ रहा है गुबार चुप हो जा, छूट जाती है फूल से खुशबू, रूठ जाते हैं यार चुप हो जा, छूट जाती है फूल से खुशबू, रूठ जाते हैं यार चुप हो जा, हम फ़कीरों का इस ज़माने में कौन है गमगुसार चुप हो जा, हादसों की ना आँख लग जाए, हसरत सोगवार चुप हो जा, गीत की ज़रब से भी है साकिर, गीत की ज़रब से भी है साकिर, टूट जाते हैं तार चुप हो जा। ये साहब ने बताया कि काबिल लोगों की सोहबत में रहना, उससे हसद नहीं होता, बल्कि ये पता चलता है समझा के पस्तियाँ वो मेरे औजे कमाल की, समझा के पस्तियाँ वो मेरे औजे कमाल की, अपनी बुलंदियाँ वो दिखा के चला गया। और मैंने कहा ना कि वो जुमला ज़ाहिर नहीं होता था उनका, तो बाज़ लतीफ़े सिर्फ उन्हीं को कहे जा सकते थे, लेकिन चलें आज मैं हिम्मत करता हूँ कि आप लोगों के सामने भी कह सकूँ। आपने साबिर सिद्दीकी का नाम लिया तो मुझे आगा शायर फजलबाश का नाम याद आया, जो कि 19वीं सदी के आखिर में पैदा हुए थे और 1920 के करीब उन्होंने मंजूम तर्जुमा कुरान का शुरू किया था। तो 1920 में उन्होंने कुरान का मंजूम तर्जुमा किया था। अकबर इलाहाबादी के आखिरी दिन थे। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल मेरे ख्याल से 1922 में हुआ है शायद। तो उन्होंने उनको भी भेज दिया कि भाई आपकी क्या राय है। तो हर तरफ उलमा ने उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की कि वाह 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 क्या काम किया है आपने। उनका ख़त आया, आपने कुरान शरीफ का मंजूम तर्जुमा किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब कोई और एक अल्लाह का बंदा इसको तबले और सारंगी पे गा भी दे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो शायरी की बात है कि उनको शायर याद करें, तो शाहिद को जो है लोग दूर दूर से याद करते हैं। हमारे दरमियान में एक शायरा थी कुछ अर्से पहले जो पाकिस्तान से आई थी, ज़ोहरा खाला। तो उनको पता चला तो उन्होंने भी शाहिद के बारे में कुछ लिखा है और उसको बयान करने के लिए मैं दावत देता हूँ उनकी दफ्तर डॉक्टर सलमा। मेरी वालदा यहाँ पिछले प्रोग्राम में मौजूद थी, मेरा ख्याल में जनवरी में था। तो उनकी शायद भाई से बस उसी में मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद वही बात हुई कि ऐसा नहीं सोचा था कि उनसे एक दफ़ा मुलाकात होगी और फिर नहीं होगी दोबारा। तो वो अम्मी से बाहर निकली थी तो शायद भाई जाके उनसे ख़ास मिले थे। बस लोग याद रह जाते हैं और लोगों का जुलूस याद रह जाता है। तो कुछ उन्होंने कहा जो मैं पढ़ने की जुर्रत कर रही हूँ। इसका उन्वान उन्होंने यादें ही लिखा है। हर लम्हा एक नक्श बनाता जाता है, वक्त की लहरें उसे मिटाती जाती हैं, पर वो नक्श जहन के निचले खानों में चुपके से एक जगह कहीं जा छुपता है। जब भी इंसान अपने आप से मिलता है, याद में हर एक नक्श उभर कर आता है। गुजरे मंजर खुद को यूं दोहराते हैं जैसे हम उस दौर में फिर से जिंदा हैं। कुछ दिन पहले जब मैं बिल्कुल तन्हा थी, शायद अपने आप से बातें करती थी।
ऐसे में वो पास मेरे यूं आ बैठा जैसे शायद दूर कहीं भी गया ना हो। हमने बहुत सी ऐसी बातें कर डाली जो शायद हम पहले भी न कर पाए कभी। पर ये क्या, वो कैसे गया और कहाँ गया? दरवाजे और खिड़की सभी बंद रहे, कोई हवा का झोंका भी तो आया नहीं। शायद वो एक वहम था या फिर धोखा था। जो भी था, कुछ देर को मेरी महफिल में कौज़ो क़ज़ा के रंग भर के चला गया। बहुत शुक्रिया। कौज़ो क़ज़ा के रंग भर कर चला गया। बहुत हो शुक्रिया। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि देखिए कोशिश करता हूँ कि सही तरीके से याद रहे। डूबना तो मुक़द्दर है मगर जितनी भी मोहलत है नसीब। डूबना तो मुक़द्दर है मगर जितनी भी मोहलत है नसीब। एक नक्श ही पानी पे बनाते जाए। कितनी गहरी बात है कि नक्श पानी पे बनाते जाएं और जो हमारी ज़िंदगी है, लेकिन वो जो नक्श बना है ये कितना खूबसूरत नक्श है। ये देखना है कि इस वक्त ये नक्श कितना खूबसूरत है। तो इसकी खूबसूरती कि ये नक्श कितना खूबसूरत है, इसको बताने के लिए मैं इस वक्त एक शख्स को दावत दे रहा हूँ जो हर चीज़ को बहुत ही मुस्बत अंदाज में देखते हैं और चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट रहती है। आप समझ गए होंगे मैं किसको बुलाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर इरफानुल हक को। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप लोगों को मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे और दुनिया आखिरत की नेमतें अता करे। मुझे शाहिद भाई से सिर्फ एक शिकायत है कि इतनी जल्दी क्या थी उनको, इतनी क्या परेशानी, क्यों हमें छोड़ के चले गए। शाहिद बहुत यादबाश इंसान, दोस्त, मीठे, मोहब्बती, पुरखुलूस, मीठे, बेहतरीन इंसान है। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनकी आराम गो को एक जन्नत का टुकड़ा बनाए जहाँ वो सुकून की, खुशी की, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे आइंदा ज़िंदगी में उनसे ऊपर मुलाकात करने का। शाहिद भाई के गुजरने के जज्बात का इजहार तो मेरे लिए मुश्किल है। मैं सोचता रहा, ढूंढता रहा कि मैं क्या कहूँ, तो मेरी नज़र एक नासिर काज़मी की बहुत पुरानी गज़ल पर पड़ी। तो जो एहसासात का तर्जुमा उसमें उन्होंने किया है, उससे आप समझ जाएंगे कि हमारे दिल के एहसासात शाहिद भाई के लिए क्या थे। तो नासिर काज़मी कहते हैं कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया। अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छुप दिखाकर, बस एक मोती सी छुप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। खुशी की रुत हो कि गम का मौसम, नज़र उसे ढूंढती है हरदम। खुशी की रुत हो या गम का मौसम, नज़र उसे ढूंढती है हरदम। वो बूए गुल था कि नग़्मे जां मेरे तो दिल में उतर गया वो। न वो रातों का चढ़ता दरिया, न वो रातों का चढ़ता दरिया, न फरसतों की उदास बरखा। यूं ही ज़रा सी कसक दिल में आई, जो ज़ख्म गहरा था वो भर गया वो। कुछ अब संभलने लगी है जहाँ भी, बदल चुका है दौरे आसमां भी। जो रात भारी थी टल गई है, जो दिन कड़ा था गुजर गया वो। शिकस्ता पारा मैं खड़ा हूँ,
शिकस्ता पारा मैं खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफिला मेरा हम सफ़र था, मिसाले गर्दे सफ़र गया हो। मेरा तो खून हो गया है पानी, मेरा तो खून हो गया है पानी, सितमगरों की पलक न भीगी, जो नाला उठा था रात दिल से, न जाने क्यों वो बेअसर गया हो। वो मैं कदे को जगाने वाला, वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, ये आज क्या इसकी जी में आई कि शाम होते ही घर गया वो हिजर की रात का सितारा, वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुकून हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो जिसके शाने पे हाथ रख कर, वो जिसके शाने पे हाथ रख कर सफ़र किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से तो न जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा, फिर न जाने किधर गया। शुक्रिया। तेरी गली तक तो हमने देखा। अब जो है तो उनकी यादों को एक दूसरे अंदाज से देखने के लिए और बताने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारी समीना साहिबा को। समीना साहिबा। मेरी मुलाकात शाइस्ता और शाहिद साहब से एग्जैक्टली 1 साल पहले नवंबर में हुई थी। हमारी एएमबी की कन्वेंशन थी दिसंबर में और मैं सेक्रेमेंटो आके तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्हें इनवाइट करी थी कि आप प्लीज़, दूर तो है फ्रीमॉन्ट न्यूयॉर्क, लेकिन आप ज़रूर आइएगा। तो जिससे उन्होंने पॉजिटिवली उसको लिया, बहुत से लोग यहाँ से गए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अपने लोग जो है ना वो बातें सुन लेते हैं लेकिन उसका एक्शन जो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो वो एक्शन ओरिएंटेड थे, दोनों मियाँ बीवी बहुत जेनरस भी थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारा इवेंट अटेंड किया और दे डोनेटेड जनरसली, लव द प्रोग्राम एंड ऑल दैट। जो मुझे चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी और बाद में जब फेसबुक पे ही जब कोई कमेंट्स एक्सचेंज होते थे तो उससे मुझे पता चला कि व्हाई डज ही लव टू सपोर्ट विमेन। मुझे बताने लगे कि मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ शाइस्ता। फिर बताने लगे कि एक दिन मुझे कहते हैं कि यू नो माई सिस्टर्स रेज्ड मी, so I want to send a message to his sisters because I heard that they said that they don't know how much he loved them. He knew how much you have loved him and he loved you that much and he was so proud of all of you. So know that message. And Shaista, for you too, he held tremendous respect for you. उनकी याद और उनकी मेमोरी में मैं आप सब लोगों से अपनी जो है ना नानी माँ की बात शेयर करूँगी। आज मैं सुन रही हूँ कि शायद सब कितने अच्छे थे, कितने ये थे, कितने वो थे। How many of you have told him that? See, we always wait until somebody is dead to just say how good they were. The time is now. So if you hold these feelings about anybody, in his memory, please share those memories. Share those comments. Because sometimes somebody needs just a little encouragement to do good. So that's number one thing that you can do. And then I think we should all do a Fatiha for him today. Because we are so many here. So please, I think I will ask you to lead that. And I will just start with that. I think we should just do something good. And send this message to his siblings. He loved you very, very much. And he knew how much you loved him. And that's why he supported our organization. I know I was making demands and all that. We should do this. On Eid, I said we should not buy things. We should give that money to other people. And I would never forget one of his comments.
Samina Saba, you are our leader, and whatever you will say, I will do. So that is, I felt like that day that he was my brother too, because that's how I get the support from my family. Whatever you do, we are behind you. तो वो यकीन नहीं आएगा कि इन्हीं हाज़रीन में से कुछ ने मिल के एक दुआ कहें या तमन्ना कहें या अर्ज़ कहें या एक ख्वाहिश का इजहार कहें, वो किए शायद से। और मेरी ज़िम्मेदारी कि मैं उन तक और आप तक पहुँचाऊँ। शाहिद भाई, आप जहाँ भी हैं बहुत खुश रहें और हमेशा मज़े मज़े के खाने खाते रहें। आप वहाँ पहुँच गए, जल्दी पहुँच गए, कोई बात नहीं, शौक से खाने खाएं, लेकिन खाने तो खैर हम अपने ले आएंगे, लेकिन हूरों के लिए हमारी ज़रा सिफारिश कर दीजिएगा। और बहुत आपको ख्याल था मुसलमानों का, इनका उनका, तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला से मुसलमानों के लिए भी सिफारिश कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे ही जैसे कि आपका अंदाज था, बहुत मासूमाना इनकिसारी के साथ। तो आप हमें याद आ रहे हैं, ये बात नहीं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन चलें अब हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे, इसलिए कि आप बहुत बड़े मिशन पर हैं और विजनरी हैं, तो आप चाहते हैं कि हम भी अपने कामों में लगे रहें, अपने विजन और मिशन से अलग ना हो, और इसीलिए आप हमसे जुड़ा हुए हैं। तो ठीक है, आप वहाँ खुश, हम यहाँ खुश, जब तक हम यहाँ हैं फिर वहीं पे मिलेंगे। भूलना मत हमें, ये नहीं कि अपने चक्करों में लग जाओ।